हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स की एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मादा चिड़िया और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. मादा चिड़िया तूफान में मारी गई और उसके दो बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। Each found a different home. प्रत्येक अलग अलग घरों में पाए गए। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यू बॉर्न बेबी रहते थे। एक लंबे छायादार पेड़ पे उनका घोंसला था जहाँ की मादा चिड़िया अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside Rishi's ashram a little distance away. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी और हवा के बहाव से बहुत सारे पेड़ झुक गए थे। लंबा वृक्ष जिस पर चिड़िया रहती थी वह भी झुक गया था। एक बड़ा सा भारी शाखा घोंसले में टकराया और चिड़िया मर गई। किस्मत से बच्चों को तेज हवा ने जंगल से बाहर ले गई, उड़ा ले गई। उनमें से एक बच्चा एक गुफा के नीचे आ गिरा जहाँ रॉबर्स रहते थे। दूसरा कुछ ही दूर पर एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा। Days passed and the baby bird became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. बहुत दिन बीते और बच्चे बड़े हो गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार करने जंगल में आया। उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे भागा। यह हिरन भागते भागते जंगल के बीच पहुंच गया। पीछे पीछे राजा। अचानक राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could.
वह भागता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचा। अब वह बहुत थक चुका था। वह घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। अचानक उसे एक चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ आई। जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। आओ और उसके गहने और घोड़े छीन लो। जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ऊपर एक बड़ा सा ब्राउन चिड़िया देखा जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था। उसने गुफा से भी हल्की आवाज़ आते हुए सुनी। वह फटाफट घोड़े पे सवार हुआ और जितना तेज भाग सकता था भागा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other birds outside the cave, he said to himself loudly. वह एक आश्रम के पास पहुंचा। यह एक ऋषि का आश्रम था। राजा ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और छाया में बैठ गया। अचानक उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दिया। आश्रम में आपका स्वागत है महाशय। कृपया अंदर आइए और आराम करें। तुरंत ऋषि लौटेंगे। घड़े में ठंडा पानी है। कृपया अपने आप को रिलैक्स करें। राजा ने ऊपर पेड़ पर एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड देखा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों एक जैसे दिखते थे। राजा ने अपने आप से बोला, जोर से लाउडली बोला, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. चिड़िया ने जवाब दिया, "आप सही हैं महाशय, वह मेरा भाई है और उसने रॉबर्स के साथ दोस्ती कर ली। अब वह वही करता है जो वे बोलते हैं। वह मुझसे बात नहीं करता।" तभी सडनली ऋषि अंदर आए। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." ऋषि ने कहा, "स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर आइए और अपने आप को कुशल बनाइए। आप थके लग रहे हैं, थोड़ा आराम करके मेरे साथ भोजन कर सकते हैं।" The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. राजा ने ऋषि के साथ उन दोनों चिड़िया की कहानी शेयर की जो कि दिखते तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग है। उसने कहा, जंगल पूरा सरप्राइज्ड है, मतलब अमेजिंग है। ऐसा राजा ने ऋषि से कहा। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. The bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds." ऋषि मुस्कुराए और बोले, "आखिरकार जो साथ रखता है वह उसे जानता है। वह चिड़िया हमेशा रॉबर्ट्स की बातें सुनता था। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बातें करता है।
ये वही बोलता है जो यह हमेशा सुनता है। यह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। फिर ऋषि ने राजा से कहा, अब अंदर आइए और आराम करिए, मैं इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा। तो ये थी कहानी। बच्चों, कहानी समाप्त हुई, लेकिन इस कहानी से हमें बड़ी अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी हमारी संगति होती है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है और हमारे जीवन पे बड़ा असर होता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। आपको कहानी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इफ़ सो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।